Brainstorming is just looking at the question and then trying to recall all the content that you have read related to that in a very narrow span of time only. It is brainstorming does not mean that you'll sit for an hour with one question. It means that you'll have to train your mind to be very quick also in thinking. अगर आपने पूरे दिन में कुछ पढ़ा है, जो भी रैंडम चीजें पढ़ी है, लास्ट में 1 घंटा just sit with it, write the topic. सिर्फ टॉपिक की ये टॉपिक मैंने पढ़ा है एंड देन ट्राई टू रिकॉल और एक वर्ड में ट्राई टू कीप राइटिंग कि अच्छा मैंने ये चीजें आज पढ़ी है इस टॉपिक से रिलेटेड. देन गो बैक टू योर नोट्स और उसमें देखो कि क्या मिस हो गया एंड देन रिकॉल दैट ऑल्सो. तो हरप्पा का क्वेश्चन है तो आई थिंक कि हाँ यहाँ पे मैप बना दिया एंड नॉट जस्ट द एरिया वाइज मैप बट आई बी लिटिल मोर स्ट्रेटेजिक कि मैं उसकी बाउंड्रीज बना दूं कि आलमगीरपुर इधर पे ईस्टर्न मोस्ट साइड है, मंडा इधर पे नॉर्थ मोस्ट साइड है, हरप्पा है यहाँ पे, मोहनजोदारो यहाँ पे. तो आई मेक अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल मैप ताकि मुझे उसमें 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए. So we have Surbhi with us. She's All India rank 14 this year. She cleared UPSC in her 4th attempt. She's from LSR, pursued history there, had history as an optional also. And she'll be talking about something very unique. It's about brainstorming. Very few rankers are able to emphasize on the concept of brainstorming. We do find some of them every year, but then very few come on public platforms and talk about how brainstorming helped them. And I believe it's a very important activity that you should know to clear mains. So she has taken out time. She has been kind enough to take out time from her busy schedule and help you with brainstorming. She'll solve GS Paper 1 2025 live and she'll tell you how she could brainstorm so many questions and score such good marks. Right? So before she starts solving the paper, thank you, Surbhi, for taking out your time. Let us know the importance. First of all, define what brainstorming is and what is the importance of it for these beginners. Hello everyone, thank you for having me here. And today we are going to discuss how brainstorming helps. So this year, like last year in my 2023 attempt, I did write all of the questions, all of the test series and the papers that were there. But this year I felt because the time was less. There was less, मतलब 1 महीना कम हो गया था इस बार. तो I thought क्योंकि पेपर लिखना in itself is a task and it's going to take 3 hours at least for me. And उतना मुझे लगता है कि पूरा पेपर लिख के मेरा आउटपुट नहीं आता और मैं इतने ऐसा हुआ. आई थिंक वो एक मेरी मजबूरी, शायद वो मेरी पॉजिटिव बन गई क्योंकि आई वॉज इनरोल्ड इन फोरम थ्रू जामिया एंड देन आई थॉट कि फोरम के टेस्ट कम रह जाएंगे तो नेक्स्ट आईएएस की भी टेस्ट सीरीज लगा ली. So I got a lot of tests and then I felt like there's a need to finish all of them but then I will not be able to write all of it. So I opted for a second thing which was to brainstorm the questions, not write them fully but go through each and every question and understand what will I write in all of them. So brainstorming is just looking at the question and then trying to recall all the content that you have read related to that, then trying to find out if you could write anything extra, any examples that you could put in. It is just writing and recalling everything in a very narrow span of time only. It is brainstorming does not mean that you sit for an hour with one question. It means that you'll have to train your mind to be very quick also in thinking. So brainstorming is that. And brainstorming is not just to write answers, it is also to learn your content. क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है एंड वैसे भी बाकी सब्जेक्ट्स में वी नो कि मेंस में बहुत रटना है, बहुत याद करना है सब कुछ. तो योर मेन फोकस वाज कि एक टॉपिक सोचा, मान लो जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन सोचा, सो आई जस्ट राइट एक शब्द में. व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर कोई टॉपिक भी है जैसे याद कर रहे हैं हम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 का कुछ याद करना है उसमें, तो आई जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हाट ऐसे बिल्कुल एक सिंगल वर्ड में पॉइंटर्स लिख लिए कि दिस थिंग आर इन न्यूज, दीज आर द आर्टिकल्स रेलेवेंट टू इट. 19 से अगर कुछ रिलेटेड भी है फ्रीडम स्पीच में, दीज आर द केसेस दैट आर रिलेटेड टू इट. तो वो सारी चीजें हेल्प्स यू कलेक्ट ऑल योर थॉट्स इन वन प्लेस एंड वो जब एक प्लेस में हो जाती है ब्रेनस्टॉर्म करके, तो इट इज इजियर फॉर यू टू राइट देम इन आंसर्स एज वेल. Right. So, what's the ideal time to pursue brainstorming? I mean, the ideal time of a beginner would probably revolve around classes or understanding concepts or reading newspaper for that matter. When should a beginner incorporate brainstorming in their journey, and what's the ideal time they can use? I think brainstorming can be started as early as possible because it will help you collect all your
whatever you are reading in one place. So for example, it is a very very difficult task. First of all, you'll have to understand, your brain will resist it कि नहीं करना मुझे recall. बट अगर आपने पूरे दिन में कुछ पढ़ा है, जो भी रैंडम चीजें पढ़ी है, लास्ट में 1 घंटा जस्ट सिट विद इट, राइट द टॉपिक, सिर्फ टॉपिक की ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, एंड देन ट्राई टू रिकॉल, और एक एक वर्ड में ट्राई टू कीप राइटिंग कि अच्छा मैंने ये चीजें आज पढ़ी है इस टॉपिक से रिलेटेड. देन गो बैक टू योर नोट्स और उसमें देखो कि क्या मिस हो गया, एंड देन रिकॉल दैट ऑल्सो. तो वो इतना सॉलिड हो जाता है ना आपके दिमाग में, जब आप नेक्स्ट डे उसको करोगे तो इट विल हेल्प यू कनेक्ट दोज डॉट्स, और वो जो पीछे लास्ट टाइम पढ़ा है वो गायब नहीं होगा. तो आइडियल टाइम इज टू स्टार्ट एज सून एज यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, एंड रोज आई थिंक आप जो भी पढ़ा है सुबह से लेके शाम तक, उसको शाम में अगर आप 1 घंटा बैठोगे, नॉट विद द गोल कि मुझे आज ये याद करना है सब कुछ, बट विद जस्ट द गोल कि तुम क्या क्या रिकॉल कर पा रहे हो कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ा है, ये इससे कनेक्टेड है, तो एटलीस्ट वो लिंक और वो सब बना रहेगा आपके दिमाग में. Perfect. It's a good start. Let us start actually solving this. Now what she'll do, students, now she'll share her screen. She'll open 2025 paper of GS1 and she will brainstorm. Yes, so we please share your screen. दिस इयर्स GS1 क्वेश्चन पेपर. तो जैसे ये मैंने ये मैं सारा चीज ब्रेनस्टॉर्मिंग आई बिकॉज आई हैड प्रैक्टिस्ड इट अ लॉट. तो जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर. नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें. तो सेलिएंट फीचर्स पूछ रहा है. what I'll do in my brainstorming session is I'll just write कि intro में what will I write. intro में generally अगर history का question होता है तो उसके sources लिख देते हैं. तो first I'll write sources, archaeological है, literary नहीं है. This is just my brainstorming thing. First heading will be salient features. फिर फर्स्ट में salient features में how I'll go about this question is, क्योंकि आर्किटेक्चर के पूछ रहा है, तो आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा हड़प्पन का चीज वाज उसका लेआउट. सो लेआउट में मतलब यू व्हाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग यू आल्सो हैव टू थिंक कि उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड मैनर में जाएं. जैसे आर्किटेक्चर में आप रैंडमली बहुत सारी चीजें जा सकते हो, बट वो ब्रॉड से छोटा छोटा छोटा. सो आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा उसमें था कि प्लान्ड आर्किटेक्चर होता है, सिटाडेल और वाली चीज जो है. तो फर्स्ट विल गो फॉर प्लान्ड आर्किटेक्चर. देन आई ऑल्सो थिंक कि अगर मैं इसमें मैप भी बना सकती हूँ, बिकॉज हड़प्पा का क्वेश्चन है, तो आई थिंक कि हाँ यहाँ पे मैप बना दिया, एंड नॉट जस्ट द एरिया वाइज मैप, बट आई बी लिटिल मोर स्ट्रेटेजिक कि मैं उसकी बाउंड्रीज बना दूं कि आलमगीरपुर इधर पे ईस्टर्न मोस्ट साइड है, मंडा इधर पे नॉर्थ मोस्ट साइड है, हड़प्पा है यहाँ पे, मोहनजोदारो यहाँ पे. तो आई मेक अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल मैप ताकि मुझे उसमें 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए. आई ब्रेनस्टॉर्म दिस की मैप बना दिया, फिर प्लेन प्लेन स्ट्रक्चर बनाया, प्लान था. तो एग्जाम्पल में धोलावीरा डाला. धोलावीरा इज वेरी डिफरेंट क्योंकि उसमें 3 पार्ट्स में है, तो आई फील कि वो चीज आ जाएगी. फिर सेकेंड पॉइंट में आई गो फॉर बड़ा से छोटे नंबर पे जाएगा, आई गो फॉर हाउसेस. हाउसेस में 3 चीजें हैं जो भी मेरे दिमाग में आती है. उसके बाद हाउसेस में दैट देवर कोर्टयार्ड बेस्ड, देन देवर वेल्स, देन प्राइवेसी वाला चीज रखते थे. देन उसके बाद फिर हम जाएंगे हाउस में भी, आई कैन मेक अ डायग्राम ऑफ इट. ऐसे मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ इसका डायग्राम भी बना सकते हैं. यहाँ पे एक वेल हो गया, यहाँ पे गेट बना सकते हैं, ऐसे करके. देन डबल, एक चीज है डबल स्टोरी भी होते थे, तो विल मेक डबल स्टोरी ऐसे स्टेयर्स आल्सो इन वन ऑफ द डायग्राम. देन आई थिंक कि लेआउट हो गया, हाउसेस हो गए. उसके बाद क्या, एक सिटी को प्लान करने के लिए 90 डिग्री वाला चीज भी आल्सो रीड. तो थर्ड पॉइंट पे आई गो फॉर ओवरऑल सिटी लेआउट, दैट वाज स्ट्रीट्स 90 डिग्री. देन एनीथिंग एल्स फॉर दिस थिंग कि और तो कुछ नहीं याद आ रहा मुझे. उसके बाद मतलब द आइडिया इज कि मैं रुक नहीं रही हूँ कि मैं फिर उसको सोचती रहूँ बहुत देर. आई जस्ट गो अबाउट थिंकिंग फिर नेक्स्ट पॉइंट में और क्या डाल सकते हो जो मुझे याद आता है. हाउसेस किससे बन रहे थे, ब्रिक्स से बन रहे थे. मतलब कमिंग फ्रॉम दिस ऑल्सो ब्रिक्स वर ऑल्सो प्लान, 2:3 का रेशियो में वो प्लान था. फिर इसमें हर क्वेश्चन में आई थिंक कि मुझे एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल डालना है. तो अब इसमें सारे कॉमन ही एग्जाम्पल आएंगे. देयर इज नो नो वो कि किसी एक सिटी में अलग हो रहा था. तो एग्जाम्पल अगर मैं हड़प्पा में हड़प्पा का हाउसेस लिख दूं यहाँ पे, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट इट विल वैल्यू एड माय क्वेश्चन. डबल स्टोरी हाउसेस मिले हैं हमको मोहनजोदारो में.
देन विल गो लेआउट, हाउसेस, स्ट्रीट ब्रिक्स। फिर आर्किटेक्चर में आई थिंक अबाउट और क्या आ सकता है। आर्किटेक्चर में वी ऑल्सो राइट कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे डॉकयार्ड है, फिर वेल्स, ग्रेट ग्रेट बाथ है। नाउ आई फील कि ये स्ट्रक्चर में काफी कुछ आर्किटेक्चर में हो गया है, अब मुझे और पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं। देन आई थिंक अबाउट कि इसकी ऑल्टरनेटिव, क्योंकि हर 10 मार्कर में इट इज जनरली गिवन कि एक दो हेडिंग होनी चाहिए। इसमें सेलिएंट फीचर्स के अलावा बहुत सीधा सीधा पूछा है, ऐसे कुछ आ नहीं रहा है कि सेलिएंट फीचर्स के अलावा और क्या लिखें। बट देन वी कैन हैव एन एक कंक्लूडिंग रिमार्क, इसका थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं हम कि जो भी हमारे आर्किटेक्चर पे एविडेंसेस हैं, दीज आर ओनली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल, वो हमारे अभी लिटरेरी सोर्सेज डिसाइफर नहीं हुई हैं। तो व्हेन दीज लिटरेरी सोर्सेज विल बी डिसाइफर्ड, फिर उसके बाद स्टालिन को अगर तुम आ सकते हो, मतलब दिमाग में रखना है कि हिस्ट्री का भी अगर कुछ करंट आ सकता है क्या, तो स्टालिन, इफ यू नो, स्टालिन हैज अनाउंस कि $1 मिलियन हम देंगे उसके लिए। अगर कोई लिटरेरी चीज डिफाइन कर सकता है तो ही हैज सेड दैट वी विल गिव $1 मिलियन, सो इफ दैट विल बी डिसाइफर्ड वी विल हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो दिस आई फील बिकम्स माय आंसर। मैंने सेलियंट फीचर लिख दिया, उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसको ब्रेनस्टॉर्म किया, पहले बड़ी चीज ब्रेनस्टॉर्म करी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर किस चीज से बना है, फिर ये दिस इज माय इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, मतलब अगर मैं आंसर डायरेक्ट लिख रही हूँ, देन आई टेक 1 more minute, I'll go to the sample answers which are given, उसमें I'll see कि क्या चीज मिसिंग है। तो अगर मेरे कोई पॉइंट्स मिसिंग है उसमें, so I'll take another colored pen और उससे I'll write कि ये पॉइंट्स लिख सकते थे इसमें। तो when I'll come to revise, I'll also revise these questions. It is very important कि अगर जो तुमने आंसर्स लिखे हैं, जो भी तुमने आंसर प्रैक्टिस करते हैं उस मेंस के टाइम पे, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू कम एंड रिवाइज देम, बिकॉज बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस विल कम डायरेक्टली इन योर एग्जाम। मतलब मेरे तो आए थे टेस्ट सीरीज से ही दो तीन क्वेश्चन एटलीस्ट वो डायरेक्टली वहां आ गए। तो हियर आई राइट if there is any new point, if there is any learning from the sample answer, or I'll open my notes as well. If I find anything that is new in my notes that I've missed, I'll mark it here and I'll mark it in my notes as well that I've missed this point, I'm not able to recall this point, I need to learn this point again. तो इससे क्या होता है कि दिस यू डू नॉट हैव टू रिवाइज, बिकॉज दिस यू नो दैट ये तुम्हारे बैक एंड में आता है तुमको, मतलब तुम बहुत जल्दी जल्दी भी सोचोगे तो तुमको ये पॉइंट्स एकदम आ जाते हैं, बट तुमको ये पॉइंट नहीं आते हैं। These points, when you will come back, you'll revise these points and learn them, and next answer you'll write it better. So this is the question, like, how are climate change and sea level rise affecting the very existence of many island nations? Discuss with examples. First thing here, it is asking climate change and sea level rise affecting island nations. Right. Island nations, first thing that you need to have in your mind, think of all the island nations that you can, like, ऐसे एक पॉइंट में सबसे पहले तो वो एक मैप आ जाना चाहिए दिमाग में। आइलैंड नेशंस हमें मॉलडीव्स पता है, मॉरिशस पता है, इधर पे इंडोनेशिया पता है, इधर पे अगर कोई ये जो यहाँ पे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे अमेरिका के इधर पे, ठीक है। देन व्हाट अदर आइलैंड्स दैट वी नो, इधर पे जापान के पास में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया के पास में आइलैंड, सो वी हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द आइलैंड्स दैट वी नो, वी कैन नेम मॉरिशस, मालदीव्स, कॉन्गोज, और इधर पे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ऑल ऑफ दैट, एंड दिस बारबुडास यहाँ पे, वेस्ट इंडीज, एंड वट एवर, फीजी, फूजी आइलैंड, वट एवर आइलैंड यू कैन थिंक ऑफ, सबसे पहले तो वो सोच लिए, ठीक है। देन व्हाट आर द जनरल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज। क्लाइमेट चेंज का सी लेवल राइज, क्लाइमेट चेंज के बेसिक इफेक्ट्स हमको सब पता होते हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या ही हो रहा होगा, सी लेवल राइज से क्या हो रहा होगा। सो यू विल गो एंड इम्प्लीमेंट, जस्ट इंटीग्रेट बोथ ऑफ दीज। क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, आई थिंक आई हैव रेड, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वेनेजुएला और ये सब, बट दैट विल नॉट बी इन आइलैंड नेशंस, आई थिंक दैट विल नॉट गो। बट सबसे पहले फूड सिक्योरिटी आएगा। मतलब we'll go in this question because
एक तो क्लाइमेट चेंज का आई थिंक आई बहुत टाइम हो गया मुझे याद करे हुए ये सारी चीजें। एक उस टाइम पे बहुत ज्यादा फैक्ट्स और ये सब याद थे, बट देन आई विल टेल यू कि जाना किस एंगल में है। सबसे पहले आइलैंड नेशन सोचने हैं, फिर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स क्या होते हैं वो सारी चीजें सोचनी है। फिर वो इस क्वेश्चन में हम जा सकते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और ये सब चीजों में। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे? एक तो टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि जब इकोनॉमी गड़बड़ होती है तो पॉलिटी भी गड़बड़ होती है उस नेशन की। देन सोशल इफेक्ट्स क्या होंगे? तो फूड सिक्योरिटी इज वन दैट थिंग, सोशल अनरेस्ट होगा, लोगों की लाइवलीहुड उसमें जाएगी। सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन गो फॉर दिस पेस्टल अप्रोच एज वेल। एंड हर क्वेश्चन में हर पॉइंट जो जनरेट हो रहा है टूरिज्म में एग्जाम्पल में लिख के विल राइट मॉरिशस। हर क्वेश्चन में हर स्टेटमेंट में हर जो पॉइंटर्स है उसमें हमें एग्जाम्पल सोचना ही सोचना है। क्योंकि हमने ये मैप शुरू में इसलिए बनाया था ताकि हर पॉइंट के साथ एक ना एक वो आ जाए, बिकॉज ईच एंड एवरी आइलैंड नेशन इज फेसिंग थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो एक पॉइंट लिखा इस मैप में से एक एग्जाम्पल इधर उठा के लिख दिया, एक पॉइंट लिखा एक इधर लिख दिया, और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट और सी लेवल राइज के इफेक्ट यू कैन थिंक ऑफ बोथ ऑफ देम इन द सेम लाइन ऑल्सो। अगर तुमको है कि ज्यादा पॉइंट्स आपको सी लेवल राइज के, बिकॉज दीज आर वेरी इंटीग्रेटेड थिंग्स, एक जैसी बातें हैं ये ऑलमोस्ट। तो यू कैन गो फॉर कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ दिस, और यू कैन गो फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑल्सो। सी लेवल राइज के एक दो चीजें लिख सकते हैं। सी लेवल राइज से क्या होगा, जो बॉर्डर पे जो इधर पे कोस्टल इकोनॉमिक जोन है वहां पे लोग पीपल विल हैव टू मूव आउट। जो ये टूरिज्म वाला डेवलपमेंट है वो हो जाएगा कम, फिशिंग वाला जो इशू है, फिशिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। सो ऑल दैट यू कैन डू इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इकोनॉमी के। मतलब योर आइडिया ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन इन दैट क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ, कि उसमें जैसे इसमें आई कुड इमीडिएटली थिंक ऑफ कि पेस्टल अप्रोच लगाना है मुझे। देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत डायरेक्ट है। सुनामी क्या है, वेयर दे फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो ये जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये मैंने ज्योग्राफी में नहीं किया था बट इन डिजास्टर मैनेजमेंट आई डिड, क्योंकि सुनामी आई थी उस टाइम पे कहीं पे। तो सो आई रेड ऑल द एग्जांपल्स ऑफ दिस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सुनामी के? मतलब दीज आर इजी क्वेश्चंस, बट ज्योग्राफी के काफी इजी क्वेश्चंस थे। Can AI and drones be effectively used along with GIS and RS technique to in location aerial mapping? So in this question you will have to think along all the lines. जैसे AI भी सोचना है इसमें, AI and drones used with GIS and remote sensing techniques in locational and aerial mapping. To be very honest, I think इसमें बहुत सारे लोगों ने GIS और remote sensing का वो ही गलत किया है। या इन लोकेशनल एरियल प्लानिंग तो आर्टिफिशियल विल हैव टू थिंक अलोंग, इसमें भी जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो विल हैव टू थिंक अलोंग कि पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीआईएस में और इसमें कैसे हेल्प करेगी और लोकेशनल एरियल प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगी। देन विल थिंक अलोंग ड्रोन्स का लाइन पे। तो वी कैन डिवाइड दिस क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग, ड्रोन्स अलग, बिकॉज इट इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, विल हैव टू डिवाइड दैट। फिर yeah, because I'm trying to recall what did I write exactly, Yeah, because it's perfectly been a fine. lot of time, Of क्योंकि course, of course. हो That's गया ऐसे 5-6 महीने। एंड उस टाइम पे क्योंकि बहुत ज्यादा रिवाइज करते हैं आप, तो आपके पास बहुत जल्दी ऐसे पॉइंट जनरेट करने के लिए भी होते हैं एंड वो इमीडिएटली आते हैं आपको। सॉरी आई that's एम very हैविंग obvious. That's very हाँ। obvious, Surabhi. Nobody is judging you for that. आप बस इनको टेक्निक समझा दीजिए. हाँ, They टेक्निक all के साथ understand. सुनिए कि योर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड वर्क। इसको ब्रेक करना पहले तो एआई को, ड्रोन को, यू विल हैव टू बी वेरी शार्प इन दैट कि 15 मार्कर क्वेश्चन है तो उसके पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको एटलीस्ट 3 पार्ट्स में तो हमको डिवाइड करना है। फिर रिमोट सेंसिंग टेक्निक में क्या उसकी मेन की आइडियाज होती हैं वो उसको ऐड करके, एंड देन लोकेशनल एरियल प्लानिंग। So then you'll have to identify for examples perspective, because I've written a lot of examples this year. With each statement, I'll write a statement, then write example, statement, example. So locational aerial planning में we'll have to identify कि aerial planning और locational planning करते किस किस चीज के लिए हैं। So for urbanization purpose, for building of roads, for making of basically बड़ा कुछ infrastructure बनाना है, solar infrastructure बनाना है या कुछ भी बनाना है। So in that sense, drones में फिर we also go into this agriculture sector. So your wide idea of brainstorming should be कि ये सारी चीजें हमने कहाँ कहाँ पढ़ी हैं, किस किस चीज में पढ़ी हैं। Then you will be able to integrate, because this is a very new kind of questions, क्योंकि
मतलब ये हम नहीं पढ़ते हैं जनरली, एंड पढ़ेंगे भी तो GS 3 में पढ़ेंगे जाके कहीं. बट कमिंग ऑफ दिस क्वेश्चन हियर विल, मतलब सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया हाउ आई एम गोइंग कि लोकेशनल और एरियल प्लानिंग का एक अलग मैप बना लिया. ड्रोन्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, ड्रोन्स का इफेक्टिवली इफ यू नो, हम ये RS से लिंक करेंगे. दैट वाज फॉर मेडिसिन, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कोविड में हमने पढ़ा था. देन डिफेंस पर्सपेक्टिव से हम यूज करते हैं. देन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट वाली चीज में वी यूज ड्रोन्स, जैसे साइक्लोन्स आ जाते हैं, फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं टू आइडेंटिफाई बॉडीज, टू आइडेंटिफाई पीपल. ये सारी चीज में drones will be used. Then for internal security purpose drones will be used. मतलब now what you can see is I am linking it to each and every subject of our syllabus GS 3 specifically. तो internal security के लिए border areas पे बांग्लादेश और म्यांमार और ये वाले border areas पे especially, या फिर porous border of Nepal, there we are going to use artificial intelligence is going to integrate into this रिमोट सेंसिंग टेक्निक इज सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं. एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरियल प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगी. एरियल प्लानिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, artificial intelligence will help sort the data. So that is one thing. And remote sensing is going to help, and GIS इस सब चीज से मतलब the broader idea is to think on all the lines and all the syllabus wise wherever you have read all these things. Artificial intelligence का main काम is here will be to just to recollect the data. So one thing that you could have understood from this brainstorming thing is कि जो जो उसमें keywords हैं, उस keywords की वेरिएशन को ब्रेनस्टॉर्म करना है कि वो कीवर्ड हमारा कहाँ कहाँ पे जा सकता है. लाइक ड्रोन्स वाले पूरे सिलेबस से मैप कर दिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जो भी चीजें हमने सिलेबस में पढ़ी है वो मैप कर दी. रिमोट सेंसिंग हमने जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होती है वो चीजें मेंशन कर दी. एंड देन लिंकिंग इट टू प्लानिंग. सो दैट वे यूल हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड ब्रॉडन योर हराइजन. यहाँ पे हमने आंसर स्ट्रक्चर नहीं किया है, बस हमने पॉइंट्स का डाइवर्सिफिकेशन एड्रेस किया है इस वाले उसमें. That is it for this question. This is the geography question. For geography also, one thing I want to suggest is कि read your prelims notes well. इस बार question अच्छे आ गए थे. Usually question नहीं अच्छे आते हैं. But then because I tend to focus on geography में especially prelims का notes, because उसमें information heavy है, वो content heavy है थोड़ा. तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गंगा रिवर बेसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्स. आई थिंक इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट फिर भी लोग ने स्ट्रक्चर करने में या ब्रेनस्टॉर्म करने में मुश्किल होता है. फिर नॉट डूइंग वो थोड़ा प्रीलिम स्पेसिफिक फोकस. ठीक है. फॉर द सोसाइटी, हाउ डू यू अकाउंट फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज given that there are increased health concerns in modern society? Now they are asking first the question की language समझना ही important है इसमें. How do you account for growing fast food industries? It is not saying कि पॉजिटिव या नेगेटिव या किस डायरेक्शन में तुमको अकाउंट करना है. सो बेसिकली यू विल हैव टू गिव एन एनालिसिस कि जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उसका कुछ पॉजिटिव साइड भी है क्या, और नेगेटिव टोन में तो ये क्वेश्चन पूछ जाए कि इंक्रीजिंग हेल्थ कंसर्न्स हो रहे हैं, बट हाउ डू यू से कि वो कैसा ओवरऑल इम्पैक्ट है. अकाउंट फॉर फास्ट फूड इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो फर्स्ट is you need to think of an introduction. You can think, I think I have written this question with Honorable Prime Minister's reference. It was there in news for a very long time. उस time पे he was focusing on obesity, reducing fat content, और ये सब चीज बहुत न्यूज में था. तो I think I started with that. इसलिए रीडिंग ऑफ द करंट एंड उनको थोड़ा बहुत रिलेट अगर कर पाओ, मतलब माई फोकस वन वाज कि अगर सोसाइटी में स्पेशली इफ आई कैन रिलेट इट टू एनी काइंड ऑफ करंट ट्रेंड, अगर करंट अफेयर्स में कुछ चीज चल रही है, आई कैन इंट्रोड्यूस विद दैट, आई कैन कंक्लूड विद दैट, और आई कैन ऐड एनी काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन दैट. तो आई थिंक वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस वाज अ वेरी गुड स्टार्ट टू दिस क्वेश्चन. देन हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस. तो एक तो पॉजिटिव साइड में दिखा सकते हैं इसको. पहले तो फास्ट फूड इंडस्ट्री जो हमारी ग्रो कर रही है, तो यू विल हैव टू बी लिटिल लेस बायस उसमें, बट देन इकोनॉमिक बूम तो है. मतलब a lot of people are dependent on this fast food industry, because fast food industry डेवलप करने के लिए do not need very big industries. मतलब पूरा की बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए. एक ठेला लगा के भी you can earn your business. MBA चाय वाला ये सब. तो these examples I have used.
you'll have to think of very relevant सोसाइटी में, स्पेशली जो सामने हो रहा है उसको तुम कैसे यूज कर सकते हो. जैसे एमबीए चाय वाला बहुत फेमस है, और वो वड़ा पाव गर्ल और ये सब चीजें, these are very डे टू डे काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स दैट कैन बी यूज. दिस इज बूमिंग द इकोनॉमी. बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड डिपेंडेंट है. वेंडर्स वाला जो गवर्नमेंट की स्कीम है दैट कैन कम इन टू प्ले, कि वो 10,000 पीएम स्वानिधि वाली स्कीम, सो दैट इज ऑल्सो गिवन. तो वो फास्ट फूड इंडस्ट्री भी उससे बूस्ट कर रही है. सो वी कैन गो फॉर इकोनॉमिक एंगल. Then we can go for women empowerment in this as well, because society में women empowerment is one important thing. तो women वाली चीज, because फूड वाली इंडस्ट्री में स्पेशली ये, तो वुमेन आर प्लेइंग अ रोल, तो वो एम्पावरमेंट हो गया. देन सोसाइटी में व्हाट एल्स वी कैन थिंक ऑफ, इकोनॉमिक हो गया. हाँ, फिर एग्रीकल्चर को बूम मिल रहा है बिकॉज वो रॉ मटेरियल, मतलब यू विल हैव टू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू गो अबाउट थिंकिंग इन इट. स्टेक होल्डर अप्रोच कर लिया एक, तो उसमें वुमेन आ गई तो उससे पॉजिटिव हो गया. एंड देन नाउ आई एम गोइंग स्टेक होल्डर में ही आई एम थिंकिंग ऑफ द एग्रीकल्चर पार्ट ऑल्सो. फार्मर्स आर एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस टू दीज, क्योंकि ये फास्ट फूड इंडस्ट्री बहुत सारा रिसोर्सेज एग्रीकल्चर उससे उठाती है, मतलब मंडी से उठाती है, तो दैट दे आर पेइंग, तो उस पार्ट को बूस्ट मिल रहा है. देन वी आर गोइंग टू थिंक ऑफ उसका लूप में नेक्स्ट साइड ऑल्सो, इट इज ऑल्सो फीडिंग अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि टू बी एबल टू फाइंड नरिशिंग फूड इज डिफिकल्ट, बट फास्ट फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल है. तो दीज आर आई थिंक सिर्फ 2-3 पॉइंट्स. अब क्योंकि हमें पता है ओवरऑल फास्ट फूड को हमें नेगेटिव ही लाइट में दिखाना है, बिकॉज टोन भी क्वेश्चन की नेगेटिव ही है, तो विल जस्ट थिंक ऑफ 2-3 क्वेश्चंस पॉजिटिव लाइट में. Then we'll go into the negative side. Increasing health concerns in modern society. Increasing health concerns, we'll mention now the health concerns that we know. Obesity है, health में heart diseases हो रही है, बहुत सारा fat content बढ़ रहा है, especially in children. I think children का भी कुछ वो था. तो in this question mainly you'll have to go stakeholder wise थोड़ा, health का किसमें concern आ रहा है. And I think that is on that part, health वाला चीज में positive. Now one thing उसमें I can again think of is कि fast food industry इसलिए भी develop करी because nuclear families हैं. Nuclear families हैं, so they are not able to make the food because both male and female are working identities, so they are not able to make their food themselves. तो वो डिपेंड करती है कि कुछ ऐसा खाना आ जाए जो जल्दी से accessible हो. So fast food industries is also growing because of that. But health concerns are increasing, so we are addressing the health wala part, ki this is happening in the health part, whatever diseases you can think of. Then you think of the diseases stakeholder wise as well. Old age में क्या हो रही है, women को क्या हो रही है, especially children को especially इसमें address करना है, because fast food is concerned with the children only. And then illustrate your answer with Indian experience. ये इसको illustration will go with examples everywhere, कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ऐसे करके whatever points you are writing, write it with example. And you can also build up a case study as well. अगर आपको इसमें, क्योंकि इंडियन एक्सपीरियंस से पूछ रहा है specifically, so here you can build up a case study as well. ऐसे box में, मतलब you write your points and in a box in the side you write a case study that this person, I'm sure वो हर जगह न्यूज में आती रहती है और हर जगह का है. I think बीच में केस आया था that there was a girl who I think 16 years की कुछ थी, बट उसने ओवर कंजम्पशन फास्ट फूड का कर लिया था एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग ऑफ फास्ट फूड. सो यू कैन मेंशन दैट केस स्टडी स्पेसिफिकली एंड दैट विल बिकम योर इलस्ट्रेशन टू दिस आंसर. तो इफ यू कुड यूज केस स्टडी एंड एक बॉक्स में बना के अलग से, ताकि वो इतने बड़े जो उसने लिखा है, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, उसको स्पेशली एड्रेस करे. इट इज जस्ट नॉट रेफरेंस में मेंशन किया हुआ. आप अगर 3 पेजेस हैं क्योंकि 15 मार्कर के लिए, सो यू कैन राइट दिस इन you can write 2 case studies as well on 2 pages. Positive side की भी, negative की भी, and दोनों negative की भी, especially health concern वाले में. So in that direction you can go for this fast food question.